जो है दोष वो मेरा है और उसे मुझे ठीक करना है ना। हमारी ड्यूटी औरों को ठीक करने की है क्या? जब हम औरों को ठीक करने जाते हैं ना, वहीं ये ट्रैफिक शुरू होता है सबसे बड़ा। तो कहाँ से शुरू हुआ? एक सिंपल थॉट से। कौन सा थॉट था? आई एम राइट। गलत नहीं है, आप ठीक हैं, लेकिन यही सोचना कि यही औरों के लिए भी ठीक है, ये गलत है। मेरा सुख का समय है तो 2 पैरों के निशान दिखाई दे रहे, तो वो भगवान को कहता है कि आप मेरे साथ साथ थे मेरे सुख के दिनों में, है ना, मेरे साथ चल रहे थे। लेकिन जब उसने देखा कि उसके दुख का समय आया तो एक ही पैर का निशान था, तो उसने तुरंत कहा, हे भगवान, तुम भी स्वार्थी निकले, लोगों ने तो साथ छोड़ा ही छोड़ा, तुमने भी मेरा दुख के समय साथ छोड़ दिया। Good evening, everybody. Getting started today. What is the topic for Sunday talk today? Traffic control of the mind. So thank you first for taking out the time once again, some of the regular faces and some of the new guests what I see on a weekend. So thank you for taking out your precious time on the weekend and coming up for this talk today. Today the speaker for this talk is Sakshi sister. So many of us would be knowing her. So she is a faculty, dedicated faculty at Brahma Kumari Shanti Sarovar. And she's been practicing Raj Yoga meditation and Brahma Kumari's knowledge from a very young age. And the last 15 years she has been rendering her services as a dedicated faculty at Brahma Kumari's. So let's give a huge round of applause and welcome Sister Sakshi on the dais. Welcome to Sister Sakshi to the dais. And I would like to mention a couple of additional services or her specific niche areas which she helps services at Shanti Sarovar. So our Bal Vrindavan program, which many of your kids might be attending, so she is a coordinator for that program. She takes care of it. And also the kids summer camp which happen at Shanti Sarovar. So Sister Sakshi plans the entire stuff and she is the primary coordinator for that along with the other faculties at Shanti Sarovar. Additionally, art and culture wing is also a lot of cultural events which you see at Shanti Sarovar throughout the year at different programs. So Sister Sakshi has a great effort and support on that. So not delaying further, let's talk about the topic and hear from Sister traffic control of the mind. From my opinion, I would want to share that this is the first of the baby steps. Traffic control of the mind sounds very simple, but it's one of the baby steps to get into the meditation. Like meditation, usually people find it's very difficult. How do you stabilize? What do you think, not think? But this is the check gate. If we understand the simple concept of how you divert your thoughts as how the traffic gets diverted on the road, then you can proceed further on your meditation journey. So end of the talk, sister would be taking a 10 minutes meditation as well. So please benefit from that. Thank you. Om Shanti. So कहा जाता है कि कोई खास दिन होता है तो उसको खास रीति से मनाना चाहिए, है ना। जैसे हम भारत में देखते हैं त्योहार है, खास है, तो खास रीति से मनाते हैं, ठीक है। किसी का बर्थडे होता है तो खास रीति से मनाते हैं, या एनिवर्सरी है खास रीति से मनाते हैं। बच्चों की छुट्टियां होती है तो उनको भी कहीं बाहर घुमाने ले जाते हैं, है ना। तो कुछ खास मोमेंट्स हम सेलिब्रेट करते हैं। तो जो वीक डेज़ होते हैं, पूरा वीक हमारा बीतता है, उसमें खास दिन कौन सा है? कौन सा होता है? हर वीक होता है। हर वीक खास दिन कौन सा आता है? संडे, है ना। संडे का इंतज़ार सबको रहता है ना, संडे को करेंगे। कई सारे काम हम ऐसे होते हैं जो कहते हैं संडे आने दो, संडे को करेंगे, संडे को करेंगे। तो आज का दिन खास था या आम था? जिस जिसका खास था वो हाथ खड़ा करी। अच्छा, वेरी नाइस। और जिनका आम था, कुछ खास नहीं किया जिन्होंने, भले इंतज़ार कर रहे थे पूरा वीक कि संडे आएगा संडे आएगा, लेकिन जब आया तो
सिंपली उसको कई बार बोर भी होते रहते हैं, अरे क्या करना है, कुछ तो करना है लेकिन क्या करना है वो मालूम नहीं होता है। तो अभी हम ये सेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा 2 मिनट का गीत सुनेंगे। रेड लाइट नहीं करना है, छोटा सा गीत सुनेंगे और आपने क्या खास किया पूरे वीक में, नॉट ओनली इन संडे लेकिन पूरा ही वीक आपने क्या खास किया, वो मोमेंट्स को एक बार आप याद करिए। कर सकते हैं ना? 1 वीक तो याद रहता है ना हमने क्या क्या किया इस वीक में, ठीक है? तो गीत बजेगा और आपको सिर्फ अपने अच्छे मोमेंट्स को याद करना है जो आपने इस पूरे सप्ताह में बिताए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में सारी दुनिया में भर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में सारी दुनिया में भर। मिलता चल तू सबसे मीठी मुस्कान के संग, भरता चल तू सब में प्यारा सा एक उमंग। लगा दे तू सबको आज हिम्मत के पर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। टूटे हर दिल को तू जोड़ दे प्यार से, खुदा की झलक दिखा अपने किरदार से। बना दे हर दिल को तू एक खुशियों का घर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। करके खिदमत सबकी दुआएं लेता चल, वक्त कैसा भी हो बनना है तुझको सफल। बना दे तू हंसी सबकी जिंदगी का सफर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में सारी दुनिया में भर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में सारी दुनिया में भर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। तो हम सब ने अपने अच्छे टाइम को याद किया सभी ने? याद आया सभी को? तो आपके मन में क्या चल रहा था, क्या फीलिंग चल रही थी? खुशी आई, खुशी, उमंग, हाँ? अपने अंदर एक जॉय की फीलिंग, आनंद की फीलिंग आई। तो आज जो हम सुनने वाले हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ माइंड, तो ये जो 2 शब्द है ट्रैफिक और कंट्रोल, पहले तो इनको अलग कर देते हैं, है ना? कंट्रोल तो बाद की बात है, पहले हम इसको समझेंगे। व्हाट इज़ ट्रैफिक ऑफ माइंड? बहुत फैमिलियर शब्द है, बहुत बार हमने सुना भी होगा, लेकिन थोड़ा आज उसको रियलाइज़ करेंगे हम। ट्रैफिक से सारा दिन हम दिन में कम से कम 2 बार 3 बार जो वर्किंग है फेस करना पड़ता है ट्रैफिक। आप जहाँ भी जाते हैं, जाने का जो डेस्टिनेशन है वो डिस्टेंस, और उसके साथ आप क्या जोड़ते हैं? ट्रैफिक का टाइम, है ना? यहाँ आने का टाइम 20 मिनट होगा, लेकिन ट्रैफिक टाइम भी उसमें ऐड करना पड़ता है। तो उस अनुसार आप अपनी प्लानिंग करते हैं, राइट? तो ट्रैफिक ऐसी
आज लाइफ का एक हिस्सा बन गया है जो हमें हर दिन फेस करना पड़ता है। ऐसे ही मन के अंदर भी जो ट्रैफिक है वो दिन में 2 बार 3 बार आता है या सारा दिन आता रहता है? हर घंटे भी आ सकता है। घंटे में 2-3 बार भी आपको ट्रैफिक, मन का ट्रैफिक क्रॉस करना पड़ सकता है या नहीं? अगर एक ही घंटे में 3-4 सिचुएशंस आई ऐसी जो आपके अनुसार नहीं थी, तो मन क्या करेगा? ट्रैफिक फंस जाएगा। ट्रैफिक में मन के संकल्प आपको परेशान करेंगे। तो ट्रैफिक माना जब अनेक प्रकार की बातें एक साथ आपके मन में आपको डिस्टर्ब कर रही है ना? तो क्यों मन हलचल में आता है? क्यों आता है? आता है कि नहीं? सब एकदम ऐसे शांत बैठे, हमारा तो मन हलचल में है ही नहीं आता है? आता है ना? सबका आता है या कोई कोई का आता है? हाथ खड़ा कीजिए। हम भी हैं उसमें, आप ही नहीं, हम भी हैं। मन आता है ना हलचल में? क्यों आता है? काइंड ऑफ थॉट्स और ओवर थिंकिंग, फियर, डर। आप क्या बोल रहे हैं भाई साहब? सिचुएशन है ना? ज़्यादातर देखा गया है जब हमारे मन के अनुसार कुछ नहीं होता है, हमारे मन को जो पसंद है उससे हटकर कुछ हो, हमारे मन को जो कंफर्ट फील कराता है उससे अलग कुछ होता है, तब हमारा मन हलचल में आता है। और जब हम हलचल में आते हैं माना मन, तो हम क्या करते हैं? औरों को भी हलचल में लेकर आते हैं ना। जैसे बच्चा है, आप कितना भी बोलो शांत बैठ जा, वो खुद भी हलचल में आएगा और आपको भी शांति से बैठने नहीं देगा, क्योंकि उसकी नेचर है। तो आज मन भी बार बार हलचल में आता है क्योंकि हमारे मन की अनुरूप बात नहीं होती है। और तब हम क्या करते हैं? उसका नेक्स्ट रिज़ल्ट, नेक्स्ट स्टेप क्या उठाते हैं? औरों के ऊपर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना। हमने कुछ समझा, हमें ये पसंद है, हमने ये समझा, अब दूसरों को भी वैसा करना चाहिए, उस रीति से हम बिहेव करने लगते हैं, है ना। तो जब कंट्रोल शब्द आता है तो मेरा प्रश्न है, कंट्रोल शब्द नेगेटिव है या पॉजिटिव है? जो पॉजिटिव समझते वो हाथ खड़ा कर, और जो नेगेटिव समझते हैं दोनों में उठाना पड़ेगा। थोड़े लोग तो अभी अभी पॉजिटिव बोल रहे थे, अच्छा उन्होंने नेगेटिव में उठाया, चलो मैं भी नेगेटिव में उठाता हूँ। आपका मन क्या कहता है? कंट्रोल शब्द पॉजिटिव है या नेगेटिव है? दोनों में हाथ उठाने वाले भी हाथ खड़ा कर लो, जिनको लगता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। और जो किसी में भी नहीं है, उनका मन तो किसी में भी नहीं है कईयों का। तो इसमें एक छोटी सी बात समझने की है कि जहाँ अपने ऊपर कंट्रोल की बात आती है तो ये एक पॉजिटिव रूप में है। जब हम खुद पर संयम रखते हैं, खुद पर नियंत्रण रखते हैं, खुद के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, इट रिजल्ट्स पॉजिटिव। लेकिन वही कंट्रोल जब औरों पे करना शुरू कर देते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? आएगा ना, नेगेटिव आएगा ना, है ना। जो मूवी मुझे पसंद है आपको भी वो पसंद आएगी? नहीं आएगी, है ना। जो जगह, जो स्थान मुझे पसंद हो ज़रूरी नहीं आपको पसंद हो। कई बच्चे होते हैं रात को जागकर पढ़ते हैं, कई बच्चे होते हैं वो सुबह जल्दी उठकर जागना पढ़ना पसंद करते हैं। तो मेरे नज़रिए से जो चीज़ राइट है, आपके नज़रिए में वो राइट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जब हम उस रीति से दूसरों को कंट्रोल करते हैं तो यहाँ एक साइकिल बन जाता है, ट्रैफिक ऑफ माइंड। कैसे बनता है थोड़ा सा समझेंगे। आई एम राइट, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, मैं ठीक हूँ, आई एम राइट, है ना।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एक्सपेक्टेशंस। जो मैंने ठीक समझा, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे साथ जो है उनको भी वो ठीक लगना चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पर क्या आता है? एक्सपेक्टेशंस। जहाँ एक्सपेक्टेशंस आती है वहाँ क्या आएगा? ओके। जहाँ एक्सपेक्टेशंस आएगी वहाँ हम अटैचमेंट में आते हैं, है ना? इनको हमारी बात माननी चाहिए। ये मेरी अटैचमेंट है। किससे है अटैचमेंट? मेरे ही थॉट से कि मैं ठीक हूँ, ये मेरा अटैचमेंट है ना। तो यहाँ क्या आता है? अटैचमेंट। फिर क्या आएगा? जहाँ दो चीज़ें जुड़ गई है। बहुत रेयर केस होते हैं ऐसे, दो बच्चे शरीर से जुड़कर अगर पैदा हो गए, बहुत रेयर होता है पर कहीं होता है ना? आपने भी सुना होगा। उनकी लाइफ कैसी है? पेनफुल है या इजी है, कंफर्टेबल है ना? एक को सोने का मन है, एक को जागने का मन है, एक को खेलने का मन है, एक को पढ़ने का मन है, बट देयर इज़ नो चॉइस, क्योंकि अटैचमेंट है। तो जहाँ अटैचमेंट आ गया वहाँ हमें पेन की फीलिंग होगी, डिस्कम्फर्ट होगा, क्योंकि हम जुड़ गए ना उस थॉट से। तो वहाँ पर हमें दुख फील होगा, है ना? पेन है, कंफर्ट नहीं है, डिस्कम्फर्ट है। और तब क्या आता है? पेन किस में रिजल्ट क्रिएट करता है? गुस्सा, चिड़चिड़ापन, है ना? मन की अशांति, ये सब यहाँ शुरू होता है। तो यहाँ फिर क्या शुरू होता है? इरिटेशन और जो भी XYZ। और फिर जब ये स्टार्ट होता है तो यहाँ पर आता है ट्रैफिक ऑफ माइंड। ठीक है? तो कहाँ से शुरू हुआ? एक सिंपल थॉट से। कौन सा थॉट था? आई एम राइट। गलत नहीं है, आप ठीक हैं, लेकिन यही सोचना कि यही औरों के लिए भी ठीक है, ये गलत है। तो यहाँ से हमने पूरा एक साइकिल बना लिया। अभी इस साइकिल को तो ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ट्रैफिक ऑफ माइंड नहीं चाहिए। क्या करना है? ट्रैफिक ऑफ माइंड चाहिए या ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ माइंड? कंट्रोल करना है ना ट्रैफिक को। तो इसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। अभी भी यही थॉट है, इसको चेंज नहीं कर रहे हम, अभी भी यही है, आई एम राइट। लेकिन इसके साथ एक और ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? यू आर ऑल्सो राइट। ठीक है? मैं भी ठीक हूँ और आप भी ठीक हैं, मैं भी सही हूँ, आप भी सही हैं, लेकिन विचार अलग हैं। गलत कोई भी नहीं है, ना मैं गलत हूँ ना आप गलत हो, लेकिन हमारे विचार, हमारी ओपिनियन अलग अलग हो सकता है ना। ये तो हमारे विचार अलग हो सकते हैं। जब हम ये सोचते हैं मैं भी ठीक हूँ आप भी ठीक हो, तो वहाँ क्या आती है? यहाँ क्या था? एक्सपेक्टेशन था। अभी क्या आएगा? एक्सेप्टेंस आएगा। ओके? हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैंने आपके विचार को भी एक्सेप्ट किया, आप भी गलत नहीं हैं। और जब एक्सेप्टेंस आएगा तो हमारे अंदर एक दूसरे के लिए रिगार्ड आता है, रिस्पेक्ट आती है। और ये रिगार्ड और ये रिस्पेक्ट कौन सी एनर्जी क्रिएट करेगा? पॉजिटिव एनर्जी। Positivity turns in peace, happiness, happy life. और यहाँ हमारा मन का ट्रैफिक के साथ क्या जुड़ जाएगा? कंट्रोल, है ना? ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ माइंड। तो हमने
विचार को नहीं हटाया, लेकिन उसके साथ कुछ जोड़ दिया है। क्या जोड़ा? आप भी ठीक हैं और मैं भी ठीक हूँ। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं शिफ्ट ऑफ थॉट्स। बस हमें शिफ्ट करना है ना। अपने आप को, किसी थॉट को हमें ख़त्म नहीं कर देना है। कई लोग कहते हैं कि पूरा विचार शून्य हो जाना, ज़ीरो थॉट जिसको कहते हैं। इज़ इट पॉसिबल? ज़ीरो करना है क्या थॉट को, है ना? किसी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, पैराशूट होते हैं ना, पैराशूट, वो कब अच्छा काम करता है? जब वो लोगों को सेफली नीचे लाता, उसी के लिए उसका यूज़ है ना। जब लोगों को वो नीचे उतारता है बहुत सेफली, जिस समय उसको खुलना है वो राइट टाइम पर खुलकर नीचे लाता है। और अगर वो सही समय पर ना खुले तो लोगों की जान भी जा सकती है। तो मन को शून्य करना माना क्या है? उसके काम से उसको अलग करना। मन बेस्ट काम कब करेगा? जब वो सही निर्णय करता है, जब वो सही दिशा में सोच रहा है ना। मन का काम क्या है? सोचना। और आप उसी से उसको कहो कि बिल्कुल नहीं सोचना है, ये तो हो नहीं सकता है। लेकिन सही सोचना, ये है मन का बेस्ट यूज़। ठीक है, तो इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल का पहला रूल है, सब सही है, विचार अलग अलग है। एक बार सभी बोलिए, सब सही है, हमारे विचार अलग अलग है। ये है पहला रूल। ठीक है, दूसरा रूल क्या है? जब भी आप जाते हैं कहीं पर, रास्ते में आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप कहो कि बस सारी सड़क खाली कर दो, मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, बस सड़क खाली रखना। उसको कौन सा ड्राइवर कहेंगे? अगर आप कहो मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ ना, मैं बहुत अच्छी ड्राइविंग करता हूँ, लेकिन सड़क आप खाली रखना, बस मेरे आजू बाजू कोई भी नहीं चलना चाहिए, तब मैं आपको बहुत अच्छी गाड़ी चला के दिखा सकता हूँ। कौन कहेगा आपको अच्छा ड्राइवर? मानेगा? खुद को मान सकते हैं, पर बाकी लोग? तो अगर हम इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कोई बात आएगी ही नहीं, तब हम खुश रहेंगे, ये होगा लाइफ में? होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा कि बातें आए ही नहीं, क्योंकि ये संसार ही बातों का है ना। संसार किसका है? बातों का ही संसार है। तो छोटा बच्चा हो या बूढ़ा व्यक्ति हो, सबके सामने बातें हैं, लेकिन उन बातों के बीच में इस जीवन रूपी गाड़ी को बिना किसी से टक्कर खाए बहुत स्मूथली, है ना, बहुत अच्छी तरह चलाना कि ना मैं किसी से टक्कर खाऊं, या कोई गलत दिशा में भी आ रहा हो तो उसको भी मैं बचा सकूं। ड्राइविंग करते समय अगर कोई बाई चांस कोई गलत दिशा में आ रहा है, नशे में है या गलत दिशा में है, आप क्या करेंगे? आप अच्छी होश में हैं, आप सही दिशा में हो, पर वो गलत दिशा में है, आप क्या करोगे? साइड देंगे ना, क्योंकि उसके साथ साथ आपकी जान को भी तो खतरा है। तो सही दिशा में चलना माना खुद भी बचना, दूसरों को भी बचाना, है ना। ना सिर्फ खुद, लेकिन औरों को भी बचाना। तो ये लाइफ की ट्रैफिक कंट्रोल का एक और रूल। खुद भी सही दिशा में चलना माना 2 फायदे हैं, औरों को भी हम सही दिशा में ला सकते हैं। तीसरा रूल, गाड़ी चलाते समय और क्या ध्यान रखना पड़ता है? सब ड्राइविंग तो ऑलमोस्ट आजकल सभी को आती है ना। सबसे मेन रोल किसका है? ड्राइवर का है। चलो, ड्राइवर तो आप सब हो ही। उसके साथ आपकी गाड़ी की ब्रेक कितनी पावरफुल है ना। अगर ब्रेक फेल है तो कितना भी अच्छा ड्राइवर हो, कोई काम नहीं आएगा, है ना। तो लाइफ में पावरफुल ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। पावरफुल ब्रेक माना क्या है? कंट्रोल करना। कंट्रोल करना माना क्या है? वही हम पूछ रहे हैं। ब्रेक माना थॉट्स। मान लीजिए आपके थॉट्स चल रहे,
तो उसके लिए हमें क्या करना है, ब्रेक कैसे लगाएंगे? ओके, और हाँ, ओके, वेरी नाइस। और कोई बताएगा? डिटैचमेंट चाहिए। और कहीं तो कोई सिचुएशन होगी जब आपने कंट्रोल ब्रेक लगाया होगा, किया होगा ना कभी तो। देखिए, जब हम ड्राइविंग करते हैं ना, कई बार कोई स्थान के अनुसार हमारा एक्सपीरियंस अलग अलग होता है ना। सीधा हाईवे है, वहाँ अलग ड्राइविंग है। जहाँ आप हिल स्टेशन पर गाड़ी चला रहे हो, वहाँ अलग अनुभव है ना। तो ऐसे ही लाइफ में भी अलग अलग प्रकार के संस्कार वाले लोग हमारे सामने मिलते हैं। कई बार एक व्यक्ति आज बहुत अच्छा है, कल देखे तो उसका मूड बिल्कुल अलग है ना। देखो, लोगों को, सबको अनुभव है इस बात का। कल तो बहुत मीठा बात कर रहा था, आज देखो तो पूरा अपोजिट। तो उस समय हम अगर वही बोलने लगे, अरे कल तो आप अच्छे थे, आज ऐसे क्यों हो गए, वो मानेगा आपकी बात उस समय? वो उस माइंडसेट में ही नहीं है आपकी बात सुनने के लिए। तो हमें अपने ब्रेक पर कंट्रोल, अपने ब्रेक को हैंडल करना होगा, है ना। अपने मन को कंट्रोल करना होगा। इसको कहते हैं डिटैचमेंट। डिटैचमेंट माना हम उसकी भावनाओं के प्रभाव में नहीं है। वो खुश तो हम खुश, वो नाराज़ तो हम नाराज़। ऐसा होता है या नहीं? जो हमारा बहुत प्यारा होता है, अगर वो हमसे ठीक से बात ना करे तो हमारी खुशी कम हो जाती है। उसने हमारे मन की बात नहीं मानी तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो मन के अंदर ये जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, ये एक दिन में ठीक नहीं होने वाले। आज आपने सुन ली बातें, ठीक हो जाएगी जाते ही घर पे? आपको रोज़ चेकिंग करनी पड़ेगी। और इसके लिए ब्रह्मा कुमारीज़ में एक बहुत सुंदर सिस्टम बनाया गया है, ट्रैफिक कंट्रोल टाइम। यहाँ हम जो सभी रहते हैं, या जो भी सेंटर्स हैं, ऑल इंडिया हो या विदेश में, सारे दिन में 7 बार ट्रैफिक कंट्रोल टाइम होता है। क्यों बनाया गया है वो टाइम? सारा दिन बिजी रहेंगे, है ना। इवन जो आप सभी तो घर में रहते, सेंटर्स पे और ज़्यादा बिजी हैं, क्योंकि आपके जैसे कितने परिवार वाले यहाँ आते रहते हैं, प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। तो हम अपने मन का ध्यान कैसे रखेंगे? हमें भी तो अपने मन का ध्यान रखना है ना। तो ट्रैफिक कंट्रोल टाइम माना जो आप समय अभी बिता रहे हैं या आने वाला घंटा है अगला, उसकी पूर्व तैयारी, चेकिंग एंड चेंज। क्या करना है? 3 मिनट उस ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम में अपने आप को चेक करो, व्हाट इज़ माई स्टेट ऑफ माइंड। अभी मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, और आने वाला जो समय है, अभी नेक्स्ट कार्य जो मुझे करना है, उसके लिए मेरा मन कैसा रहना चाहिए। पहला वाला घंटा भी चेक करना, आने वाला समय भी चेक करना। और ये ट्रैफिक कंट्रोल का इतना सुंदर अनुभव है कि हमारी जानकी दादी जो प्रैक्टिस करते थे इन चीज़ों का बहुत अच्छी तरह, उनकी इस प्रैक्टिस के कारण उनको मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड ये टाइटल दिया गया। ताली तो बजाइए, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, कितनी बड़ी बात है। और जब उनका ये टेस्ट लिया गया, साइंटिस्ट ने उनके ब्रेन के वेव्स का टेस्ट लिया, वो कोई ऐसा नहीं है कि आराम से कंफर्ट होकर बैठे थे बहुत समय से, हाँ, अपने स्टेट ऑफ माइंड पर ध्यान दे रहे थे, नहीं। वो ट्रैवल करके आए थे, ट्रैवल करके आए और तुरंत उनका कुछ ही क्षणों में उनका वो टेस्ट हुआ। आप कहीं से ट्रैवल करके आओ, आप देखो आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहेगा। जहाँ जो जगह छोड़ के आए वो भी अपने हाथ अंदर लेकर आएंगे मन में, और जहाँ पहुँच गए वहाँ के थॉट्स भी आते रहेंगे। और दादी इतनी घंटों की यात्रा करके
जब उनके माइंड वेव्स को चेक किया गया तो साइंटिस्ट इतना आश्चर्य में आए कि इस एज में, इतना एज होने के बाद कैसे कोई का माइंड इतना स्टेबल हो सकता है। तो कैसे हुआ? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हर दिन प्रैक्टिस किया। और उसके बाद दादी ने क्या किया, ना सिर्फ 7 बार, लेकिन दादी ने रूल बनाया, हर घंटे का पहला मिनट आपको ट्रैफिक कंट्रोल करना है। क्या करना है? हर घंटे का 1 मिनट, ओनली 1 मिनट आपको वो ट्रैफिक कंट्रोल करना है। अपने मन की ट्रैफिक को कंट्रोल करो। तो ये पूरे संस्था में जहाँ भी सेंटर है, इवन घर में भी जो लोग रहते हैं, जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, वो घर में भी ये प्रैक्टिस करते हैं। घंटे का पहला मिनट ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ माइंड कर सकते हैं ना? 1 मिनट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? 1 सेकेंड अपन ग्लास उठा के पानी पीते हैं ना, कितना टाइम लगता है? आपको 1 ग्लास उठाकर पानी पीने में कितना टाइम लगेगा? कुछ सेकंड्स, या चलो आधा मिनट समझ लीजिए। तो कोई इतना बिजी तो नहीं है कि उसके पास आधा मिनट भी ना हो। है कोई इतना बिजी? आप में से जो यहाँ बैठे हैं इतना बिजी हैं कि आधा मिनट भी हमारे पास टाइम नहीं है। पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि शरीर के लिए ज़रूरी है। समझते हैं ना? पानी पीना बीच बीच में, है ना? कई लोग तो फ़ोन में रिमाइंडर रखते हैं पानी पीने के लिए भी, क्योंकि पानी पीना भूल जाते हैं काम में। ऐसे बहुत लोगों को हमने देखा है, उनके फ़ोन में रिमाइंडर बजेगा पानी पीने का टाइम हो गया है। तो इतना ध्यान रखते हैं। और जो मन, जो सारा दिन हमें मदद करता है, सारा दिन जिससे हम शक्ति लेते हैं, उसके लिए हमारे पास टाइम भी नहीं है। हाँ, मैं हफ्ते में 1 दिन आया, सुना टॉक, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, अप्रिशिएट भी किया, हाँ हाँ करके गए। फिर पूरा वीक क्या किया? फिर अगले वीक आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन लेकर जो गए वो कितना अप्लाई किया, है ना? जापान का एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बहुत छोटा एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पानी के 2 बॉटल्स पर सिर्फ नाम लिखा। एक पर नाम लिखा मदर टेरेसा और एक पर नाम लिखा हिटलर। और उनका जो वहाँ शोरूम था, वहाँ जो उनका लैब था, वहाँ रख दिया। तो जो भी उनके लैब में वहाँ आते थे, वो सामने पढ़ते थे ना नाम, मदर टेरेसा, हिटलर। ऑटोमेटिक जो देख रहे हैं, जिसने मदर टेरेसा नाम पढ़ा, उनकी फीलिंग बहुत काइंड, बहुत लवफुल, बहुत प्यार की। और जो हिटलर पढ़ रहे थे, जब हिटलर पढ़ा तो ऑटोमेटिक फीलिंग्स चेंज हो गई। तो जब बाद में उस पानी को एक्सपेरिमेंट किया, उसके अणु तत्वों को, तो जहाँ मदर टेरेसा वाला जो पानी का अणु तत्व था वो बहुत सुंदर शेप में, और जो हिटलर जिस पे लिखा था वो बहुत बिखरा हुआ। तो एक पानी अगर इतना एनर्जी को कैच कर सकता है, हमारे शरीर में तो 70% तो पानी है ना। तो हमारा मन जिन संकल्पों को सारा दिन कैच कर रहा है, मन का भोजन क्या है? संकल्प है ना, कैच कर रहा है, शरीर में क्या भेज रहा है, क्या एनर्जी भेज रहा है। तो अगर हम ये रुक कर अपने ऊपर चेकिंग नहीं करते हैं, क्या मेरा ये घंटा बीता है, तो क्या होगा? आप दिन तो बिताते रहेंगे, ऐसे ही बिताते रहेंगे, लेकिन आपका रिजल्ट कैसा रहेगा? रात तक आप बिल्कुल लो एनर्जी, बिल्कुल आप ऐसे लगेगा आपके मन में शक्ति ही नहीं है ना। तो अभी 1 मिनट ट्रायल कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए क्या करेंगे? 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ माइंड, है ना, सिर्फ 1 मिनट के लिए, ठीक है। कोई हम म्यूज़िक नहीं बजाएंगे, कोई कमेंट्री नहीं, लेकिन आप अपने लिए एक अभ्यास करके देखिए, ओनली फॉर 1 मिनट।
ओम शांति। तो ये जो छोटी सी प्रैक्टिस है, आप आधा मिनट या 1 मिनट टाइम निकालो सिर्फ अपने खातिर, है ना, अपने मन के लिए, अपने मन के मालिक बनकर। मन के मालिक हैं या मन आपका मालिक है? अभी आप सब ने क्या अनुभव किया? मन आपका मालिक था या आप मन के मालिक थे? मालिक थे ना, आप ही थे ना मन के मालिक। तो एक बार अच्छे से बोलिए ना, हम अपने मन के मालिक हैं। ठीक है, तो पहला रूल क्या है ट्रैफिक कंट्रोल का? हम अपने मन के मालिक हैं। और उसके पहले क्या सुना? अभी अभी हमने आधा घंटा कुछ अच्छी बातें जो सुनी, क्या इम्पोर्टेंट बात सुनी? मैं भी राइट हूँ, आप भी राइट हो। अलग अलग ओपिनियन है लेकिन गलत नहीं है ना। जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सामने वाला गलत नहीं है, अलग है, वहीं हमारा मन शांत होना शुरू हो जाता है। वहीं से उसकी एनर्जी जो है ना, उत्तेजना की, वो शांत होना शुरू हो जाती है। दूसरा क्या सुना? 1 मिनट साइलेंस, ओनली 1 मिनट, जब भी आपको समय मिले 1 मिनट साइलेंस, क्योंकि आप अपने मन के मालिक हैं। अगली बात, आप जो संकल्प करते हैं वो आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। आपके अंदर कोई और क्रिएट नहीं कर रहा है, आप खुद अपने मन के संकल्पों को क्रिएट कर रहे हैं। तो जब मैं अपने मन के संकल्पों को क्रिएट कर रही हूँ तो दिस इज़ माई चॉइस, मैं उसको पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव, है ना। आप सुपरमार्केट गए हो, आपके मन में पता है ना कौन सी चीज़ लेने जा रहे हैं। कितनी भी चीज़ें हैं, पर आप क्या लेंगे? जो आपकी लिस्ट में है। तो सारा दिन ये दुनिया भी सुपरमार्केट है। आपको कोई अच्छा देगा, कोई बुरा देगा, कोई प्यार देगा, कोई आपको अपशब्द कहेगा, किसी का मूड ऑफ है आपको उस रीति से ट्रीट करेगा। ये सुपरमार्केट में आप निकले हो, आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? जो आपको लेना है ना, क्योंकि आप अपने मालिक हो, दूसरे आपके मालिक नहीं है, आप अपने मालिक हो, राइट। तो मेरी लिस्ट में क्या होना चाहिए? मेरी लिस्ट में क्या होना चाहिए बताइए? आपकी लिस्ट किससे भरपूर होनी चाहिए? प्यार, खुशी, शांति, आनंद, प्रेम, है ना, अपनापन, सत्कार, सम्मान, ये हमारी लिस्ट में होना चाहिए। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, बहुत अच्छा ये सेंटेंस है, दुख देना नहीं है हमें मालूम है, पर दुख लेना भी नहीं है। देते नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारी नेचर है, हम नहीं देते, पर ले लेते हैं। तो आपने औरों को दुख तो नहीं दिया, खुद को तो दुख दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि औरों से ले लिया ना, लेके खुद को तो दुख दे दिया। तो ना देना है ना लेना है, ठीक है। तो इसीलिए ये अगला स्टेप, हम अपने संकल्पों के क्रिएटर हैं। तो दिस इज़ माई चॉइस, पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। अगली बात, जब हम इस जीवन यात्रा में जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सिचुएशन में सबका रिएक्शन एक जैसा होगा। हो सकता है, मान लीजिए अभी हम इस हॉल में बैठे हैं, ठीक है। इस हॉल में एक सीन, छोटा सा एक सीन अगर आए आपके सामने, एसी बंद या एसी ख़राब हो गई, मान लीजिए एसी नहीं चल रही है इस हॉल में, और पंखा भी नहीं है, और फुल गर्मी की सीज़न है, और आपको कहा गया अभी बस ठीक हो जाएगा, आप थोड़ा रिलैक्स रहो, बैठे रहो, ठीक हो जाएगा। आपको ऑप्शन नहीं है बाहर जाने का, ठीक है, सिचुएशन है। क्या करेंगे? बैठे हैं, सभी बैठे हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा होगा, आपके अंदर मन की जो हलचल है, धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ना
शुरू हो जाएगी। और जितना जितना टाइम बीतता जाएगा वो हलचल और ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। और अंदर आने लगेगा, अब तक भी बोला नहीं है, कब ठीक होगा। हाँ, बस हमको बिठा दिया गर्मी में, हाँ, ना बाहर जाने दे रहे, ना टॉक चल रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। नेचुरल है ना, ये होगा ना। बाहर जितना गर्मी बढ़ेगी यहाँ भी गर्मी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमारे सामने है। अब यहाँ लगभग समझ लीजिए 50-60 लोग जो भी बैठे हैं, 40-50 लोग, सब ने एक जैसा सोचा होगा? ये बताइए मुझे, क्या सभी ने, जितने भी लोग बैठे, एक जैसा सोचा होगा? इससे तो आप सहमत हैं ना, सब एक जैसा नहीं। सिचुएशन एक ही है, सिचुएशन एक है, लेकिन सोच सबकी। हो सकता है इनमें से, आप सब में से, चलो 95% लोग इरिटेट होते होंगे मान लीजिए, पर कोई 4-5% ऐसे भी होंगे जो सच में शांति से बैठे, जिनके मन में बिल्कुल भी हलचल नहीं है। क्यों नहीं है उनके मन में? वही परिस्थिति उन्हीं के सामने है ना, पर क्यों नहीं आई हलचल? देखो भाई साहब ने जैसे एक बात कही, उन्होंने ये सोचा शायद कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, है ना, क्योंकि हम कोई जानबूझकर तो नहीं करेंगे, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ गई। वेरी नाइस। और क्या बोला अभी कोई बोल रहे थे? हाँ जी, एक्सेप्टेंस आ गई होगी उनके अंदर कि चलो ठीक हो जाएगा, हर संडे तो अच्छा ही होता है, इस बार ऐसा हो गया होगा। और उसको पॉजिटिव कैसे सोच सकते हैं? सोचिए सोचिए, सोच को कंट्रोल किया, कुछ पॉजिटिव सुना सकते हैं, कुछ पॉजिटिव सुना सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव की लिस्ट तो बहुत है, पर पॉजिटिव को बहुत सोचना पड़ता है ना। नेगेटिव तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव नेचुरल हो गया है अभी। हाँ, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं ना, तो हमें भी उनको सपोर्ट करना है। तो पॉजिटिविटी की हमें आदत जो है ना, वो बनानी पड़ रही है अभी। नेगेटिव आदत में आ चुका है, इतना आ गया है कि आपको गाइड करने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन पॉजिटिव के लिए हमें अभी गाइडेंस चाहिए। तो इतना ही फ़र्क है उन 95% और 5% में। उन्होंने सीन पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपने ऊपर ध्यान दिया, हमें कैसे रहना है। और जो 95% है वो सीन को ही देख रहे है ना, सीन क्या चल रही है। तो जितना सीन को देखते जा रहे हैं उतना उतना डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं। और ये पॉसिबल है ना, आपका अगर तन माना शरीर डिस्कम्फर्ट है तो ऑटोमेटिक आपका मन भी क्या होने लगता है, डिस्कम्फर्ट में आने लगता है। पर क्या ऐसा हो सकता है आपका शरीर बहुत कंफर्ट में है, एसी चल रहा है, सब परफेक्ट है, पर मन डिस्कम्फर्ट में है? हो सकता है? होता ही है, हो सकता है नहीं, होता ही है ना। एसी की कार में जा रहे हैं, चलो ट्रैफिक जाम हो गया, पर अंदर तो एसी है ना, फिर भी हम कितना डिस्कम्फर्ट होते रहते। मन बार बार कहता है अरे ऐसा, अरे वैसा, ये कर सकता था, वो कर सकता था, कितने थॉट्स आ जाते हैं। तो मन को अनकंफर्टेबल होने में बहुत थोड़ा टाइम चाहिए। इतना आज हमारे हाथ से ये मन की लगाम छूट गई है, छूट गई है या नहीं? थोड़ा सा इधर उधर हुआ बस। तो ये आज बहुत ज़रूरी टाइम जो ऐसा आ गया है कि हमें अपने ऊपर अपना मालिक बनकर, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, इसीलिए एक बहुत सुंदर शब्द आता है ना गीता में भी, मन जीते जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया, समझो उसने संसार को जीत लिया। और सारे संसार को जीत ले पर मन को ना जीत पाए तो वो कहा जाता है गुलाम, है ना। कहा जाता है ना कि मन का गुलाम है ये, तो मन को ही वश में नहीं कर पाया। इसलिए भगवान भी कहता है मन मना भव। मन मना भव माना
मन को मुझ में लगाओ। उसने ये नहीं कहा धन को मुझ में लगाओ, तन को लगाओ, संबंधों को लगाओ, आपकी संपत्ति को लगाओ, नहीं। मन मना भव, मन को मुझ में लगाओ, क्योंकि मन ही वो पावरफुल टूल है, वो पावरफुल शक्ति है जो आपके पूरी जीवन को बदल सकता है। बदल सकता है ना। आपका मन का एक संकल्प, देखो हमने एक ही संकल्प चेंज किया ना, यहाँ क्या चेंज किया हमने, सिर्फ एक थॉट, और पूरा साइकिल चेंज हो गया। तो इस अभ्यास की इस समय पर, जब बाहर बहुत सिचुएशन बिल्कुल अनिश्चित है ना, टाइम कैसा है, बिल्कुल अनिश्चित है, ऐसे समय पर हमें अपने आप को बहुत अच्छी तरह गाइड करना है, बहुत अच्छी तरह रूल करना है। रूल माना एक सही दिशा देनी है, पॉजिटिव दिशा। क्योंकि देखिए, आप जब बीज बोते हैं, बीज में डिफेक्ट है अगर, तो उससे निकलने वाले फलों में भी वो डिफेक्ट आएगा। तो आप एक एक फल को ठीक थोड़ी कर सकते हो। आप एक एक पत्ते को पानी दोगे क्या? किसको पानी देते हो? रूट में, फाउंडेशन में, जड़ में, है ना। एक एक पत्ते को ऐसे पानी देते रहोगे तो आप तो कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे, है ना। आपकी एनर्जी, आपका टाइम सब वेस्ट हो जाएगा। तो क्या करना है, रूट पर ध्यान देना है। और रूट क्या है? मन, मन के संकल्प, यही रूट है जो आपके पूरे लाइफ को फ्रूटफुल बनाएगा, माना अच्छा फल देगा। ठीक है। क्योंकि देखिए, एक बहुत अच्छा बात है, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है ना, तब डॉक्टर क्या कहते हैं, या घर वाले भी क्या कहते हैं, अच्छा अच्छा सोचो, बोलते हैं ना। ये 9 महीना आप अच्छा सोचना, तो बच्चा भी अच्छा स्वस्थ रहेगा, उसका भी जीवन अच्छा रहेगा। उसके लिए जो अभी तक बाहर भी नहीं आया है, जिसको अभी तक न सुनने की शक्ति है, लेकिन सोच को वो स्वीकार कर सकता है ना। तो जो चैतन्य में है हमारे सामने, हम देख पा रहे जिनको, बच्चा तो गर्भ में देख भी नहीं पा रहे, जिनको हम देख पा रहे हैं, जो हमारे परिवार वाले हैं, उन पर हमारा कितना जल्दी असर होता है। आप घर में बैठे हो, आप बस सोच रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन अंदर सोच रहे। मान लीजिए आप अपने बच्चे के लिए ये सोच रहे हो, थोड़ा चिंता कर रहे हैं, या ये सोच रहे हैं, समझता नहीं है, मानता नहीं है, कितना भी कहो सुधरता नहीं है, इतना स्लो है। उनको देखो, पड़ोसी का ऐसा कर रहा है, ये ऐसा नहीं है, कब उसके जैसा बनेगा, ये बस सोच रहे हो। बच्चे को नहीं बोल रहे, अभी क्या कर रहे हो, सोच रहे हो। जाएगा या नहीं उस तक? जाएगा। अगर गर्भ में बच्चा ले सकता है माँ के संकल्प, तो जो सामने है वो नहीं लेगा क्या? पानी ले सकता है, तो जो जीवित है, सामने है, चैतन्य है, वो कितना ले रहा होगा। और कितने प्रकार से हम सोचते हैं ये सब, है ना। ये लाइट जाना, ये सब तो बहुत छोटी सिचुएशन है ना, बहुत छोटी सिचुएशन, उसमें ही हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। मान लीजिए आपको रूम से बाहर भी भेजा, अब लिफ्ट भी काम नहीं कर रही, आप कहेंगे क्या लिफ्ट भी ऐसे हो गई। फिर एक थॉट आ गया नेगेटिव, वहाँ एक इरिटेशन शुरू हो गई। फिर सीढ़ी से नीचे गए, घुटनों में दर्द हुआ, फिर एक और इरिटेशन, थोड़ा चिड़चिड़ापन आया। फिर रास्ते में किसी से टक्कर हो गई, फिर इरिटेशन, एक 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 आता गया। आपने कहीं पर भी पॉज नहीं दिया ना, रुक कर 1 सेकंड भी ये नहीं कहा नहीं ठीक है, ठीक हो जाएगा। करते गए करते गए करते गए, वो क्या हो जाएगा, हमारी नेचर में वो कब आ जाएगा हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये तो छोटे छोटे पेपर हैं जिनमें हम फेल हो जाते हैं, होते कि नहीं। पढ़ाई में तो हमने अच्छे अच्छे मार्क्स लिए हैं, डिग्रियां ली है, पर लाइफ में जो छोटे छोटे पेपर आते हैं उनमें डिग्री लेना है कि नहीं, पास होने की लेनी है, सबको लेनी है कि नहीं लेनी, लेनी है ना। छोटे पेपर में जब पास होंगे
तब बड़े पेपर में पास होंगे। आज सारा साल बच्चों के टेस्ट होते हैं या छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, वो मार्क्स फाइनल पेपर में भी ऐड होते हैं ना, वो रिज़ल्ट में, कि सारा साल उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही स्कूल में, कॉलेज में, वो सारा ओवरऑल लास्ट में फिर ऐड किया जाता है। तो छोटे छोटे बातों में फेल होते रहेंगे तो बड़ी बात में आप कैसे बोल सकते हो हम पास हो जाएंगे? गारंटी है? नहीं है ना। तो इसीलिए सबसे बड़ा पेपर तो आता है जब हमारा कोई प्रिय चला जाता है ना। लाइफ का सबसे बड़ा पेपर कब आता है? जब हमारा कोई बहुत प्यारा हमसे बिछुड़ जाता है, माना शरीर छोड़ देता है, हम उससे मिल नहीं पाए या हम उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाए, हम उससे जो अपने मन की भावनाएं हैं वो बता नहीं पाए और वो चला गया। हम बहुत दुखी होते हैं और होता है क्योंकि हमारा संबंध था उससे। लेकिन जैसे एक गर्भ का बच्चा अपनी माँ के संकल्प ले रहा है, तो जो आत्मा गई है वो भी किसी के गर्भ में गई है ना, गई है या नहीं? आगे की यात्रा में गई है ना। उसका पार्ट आपके फैमिली से पूरा होकर आगे की यात्रा पर वो अगले परिवार में गई। आप उसको क्या दे रहे हो? क्या दे रहे हो? दुख, चिंता, डर, अशांति। वो भी किसी के गर्भ में गया है, वो भी अब अगली यात्रा शुरू करने वाला है ना, करने वाला है कि नहीं? आपका बच्चा कहीं बाहर पढ़ने जाए, आप क्या कहते हो? हैप्पी जर्नी, है ना। यहाँ की चिंता नहीं करना कहते हो ना, घर का नहीं चिंता करना, आप अपनी पढ़ाई पे, अपनी जॉब पे ध्यान देना। कुछ आपके घर में ऊपर नीचे होगा ना तो भी आप बताते नहीं हैं उसको। क्यों नहीं बताते? क्योंकि उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा ना, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका कैरियर में कुछ, उसका जो जॉब चल रहा है उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि वो चिंता करेगा। तो जो आत्मा चली गई, जो नई यात्रा शुरू कर रही है, जो किसी और के गर्भ में गई है, वो भी नया जन्म लेने वाली है। लेकिन हम यहाँ बैठकर उसको क्या दे रहे? दुख, दुख की फीलिंग, है ना। क्या वो आपको दुखी देखना चाहता है? जो गया है वो भी आपको सुखी ही देखना चाहता है। तो ये हम क्या देते हैं, क्या लेते हैं, ये बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं जो बाहर से पता नहीं चलती है ना। तो इसीलिए ये लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन है कि आप जो सोचते हैं, जो भी सोच रहे हैं, वो ना सिर्फ आप खुद, लेकिन आपके आसपास जो 5 तत्व हैं, प्रकृति है, जीव जंतु है, वायुमंडल है, अड़ोसी पड़ोसी है, पूरा विश्व उसको कैच करता है। तो इतनी जिम्मेवारी हम पर है। कितनी है? सारे विश्व की जिम्मेवारी, लेकिन शुरुआत अपने आप से। पहले मेरी जिम्मेवारी है कि नहीं? है ना। मेरी जिम्मेवारी है अपनी खुद के ऊपर। खुद को ठीक रखेंगे तब तो हम बाकी सबको ठीक रख सकेंगे, है ना। तो इसीलिए पावरफुल माइंड, पावरफुल ब्रेक। तो क्या होगा? ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ माइंड, है ना। और ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए एक दिन नहीं, हर दिन हमें अभ्यास करना है। जो बताया, आधा मिनट, 1 मिनट भी करना है, लेकिन ज़रूर करना है। करेंगे आज से ये? क्या अभ्यास करेंगे? अपने दिन में जो कुछ भी आप करते हो, आप जॉब पे जाते हो, आप हाउसवाइफ हैं, या जो भी आप करते हैं, कोई भी काम शुरू करने से पहले और ख़त्म होने के बाद 1 मिनट अपने लिए टाइम निकालना है, बस इतना ही। शुरू करने से पहले 1 मिनट निकालिए और ख़त्म होने के बाद 1 मिनट अपने को दीजिए। आप देखना, आपको बहुत चेंज फील होगा। बहुत बहुत। ये हमारा अभ्यास है
है ना। तो ये कर सकते कि नहीं, कर सकते हैं ना। तो जो मेन बात है वो क्या क्या याद रखेंगे? पहला क्या याद रखेंगे? सब सही है लेकिन अलग है ना। ये पहली एक्सेप्टेंस। दूसरी बात, हम अपने मन के मालिक हैं, है ना। कौन है हम? सब बोलिए, हम अपने मन के मालिक हैं। तीसरी बात क्या थी? हर एक संकल्प मेरी क्रिएशन है। मेरा हर संकल्प, किसी और पे दोष नहीं देना है ना। झट से हम बोल देते हैं ना, इसके कारण, उसके कारण, इसके वजह से, उस नहीं, कोई का दोष नहीं है। मैं खुद अपने मन के संकल्पों को क्रिएट कर रही हूँ। जो है दोष वो मेरा है और उसे मुझे ठीक करना है ना। हमारी ड्यूटी औरों को ठीक करने की है क्या? जब हम औरों को ठीक करने जाते हैं ना, वहीं ये ट्रैफिक शुरू होता है सबसे बड़ा। तो क्योंकि हर एक का अलग नेचर, हर एक की सोच अलग, और आप उसी को ही कंट्रोल करने जा रहे हो, उसी को ही चेंज करने जा रहे हो। नहीं कर सकते हैं। आप जीवन भी लगा दोगे ना, आप चेंज नहीं कर सकते किसी को। इसलिए हमें करना नहीं है, हमारी ड्यूटी भी नहीं है, सिर्फ अपनी ध्यान, अपना केयरिंग। तो मुझे अपने संकल्पों की रचना मैं खुद कर रही हूँ और ये मेरी चॉइस है, अच्छा लेना है या बुरा लेना है। ठीक है, चॉइस है ना आपके पास, अच्छा लेना है या बुरा लेना है। तो ये मन की शक्ति को हमें अच्छी तरह यूज़ करना है। और लास्ट में क्या करना है? सारा दिन में जो 1 मिनट का होमवर्क है वो ज़रूर करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, 5-7 मिनट पहले हम कमेंट्री भी थोड़ा अच्छी तरह अपने साथ करेंगे मेडिटेशन की, और उसके बाद लास्ट में एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। ओम शांति। रिलैक्स होके सभी बैठ जाएं, कंफर्ट होके बैठे। तीन पावरफुल थॉट्स अपने अंदर दोहराएंगे हम। मैं आत्मा अपने मन की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। ये मन मेरा है। मैं जैसे चाहूं, जब चाहूं, उस अनुसार इसे चला सकते हो। मन के मालिक होकर बैठे। और अपने संकल्पों को देखें। एक संकल्प जो मेरे मन में आ रहा है, उसकी क्रिएटर मैं खुद हूँ। इनको मैंने रचा है। ये संकल्प मेरी स्वयं की रचना है। मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति है,
उसमें किसी और का दोष नहीं, सब निर्दोष हैं, सब सही है, कोई गलत नहीं। इस भावना को स्वीकार करें। हर एक आत्मा सत्य है, श्रेष्ठ है, पवित्र है। मुझे हर एक से गुण उठाने हैं, हर एक से सुख लेना है और सुख देना है। हर एक को प्यार देना है, हर एक को शक्ति देनी है। अपने मन को पावरफुल ब्रेक की तरह इस जीवन यात्रा में मुझे चलाना है। ये जीवन यात्रा बहुत सुखद है। इस यात्रा में अनेक प्रकार के दृश्य मेरे सामने आ रहे हैं। ये सब साइड सीन है। मेरी नज़र मेरे लक्ष्य की ओर, मेरी मंजिल की ओर है। मुझे अपने आप को बहुत बेहतर बनाना है, बहुत श्रेष्ठ बनाना है। एक अच्छा ड्राइवर बनकर इस जीवन रूपी गाड़ी को सुचारू रूप से चलाना है। भगवान मेरा साथी है। हर पल वो मेरे साथ है। हर हाल में, हर बात में वो मेरा साथ निभाने वाला है। महसूस करें परमात्मा के प्यार को, उसकी शक्ति को, उसके साथ को महसूस करें। और उसे दिल ही दिल शुक्रिया करें कि हमें इतना सुंदर जीवन दिया, इतना सुंदर परिवार दिया, इतने सुंदर संबंध दिए। दिल ही दिल में शुक्रिया करें उसका। जो कुछ आपके जीवन में है उन सब को शुक्रिया करें। हर एक संबंध को धन्यवाद करें। खुद को भी धन्यवाद करें। ओम शांति।
तो परमात्मा का प्यार, परमात्मा का साथ हमेशा है ही है ना। एक छोटी सी कहानी तो सुनी होगी ना, एक बच्चे की कहानी है कि जब वो अपने लाइफ को देख रहा था तो उसने देखा कि जब मेरा सुख का समय है तो 2 पैरों के निशान दिखाई दे रहे, तो वो भगवान को कहता है कि आप मेरे साथ साथ थे मेरे सुख के दिनों में, है ना, मेरे साथ चल रहे थे। लेकिन जब उसने देखा कि उसके दुख का समय आया तो 1 ही पैर का निशान था, तो उसने तुरंत कहा, हे भगवान, तुम भी स्वार्थी निकले, लोगों ने तो साथ छोड़ा ही छोड़ा, तुमने भी मेरा दुख के समय साथ छोड़ दिया। तो भगवान मुस्कुराता है और वो कहता है कि ये जो पैरों का निशान है ना, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। कि जब तुम्हारा दुख का समय था तो मैंने तुम्हें चलने भी नहीं दिया, लेकिन अपनी गोद में उठा लिया, है कि नहीं। तो परमात्मा के लिए हमें ताली बजाना है, इसके लिए कि भगवान हमसे इतना प्यार करता है कि वो हम बच्चों को दुख में देख नहीं सकता है। जब दुख होता है तो वो हमें अपनी गोद में, अपनी पलकों में समा लेता है, इतना उसका प्यार है। इसीलिए उसको कहा जाता है तो प्यार का सागर है। तो उसके प्यार को, उसकी शक्तियों को, उसके गुणों को अपने लाइफ में लेकर आएं और अपने लाइफ को बहुत बहुत ऊंचा, श्रेष्ठ, बेहतर बनाएं। तो अभी लास्ट में एक छोटी सी, हम बहुत छोटी एक्टिविटी करेंगे। जो गीत हमने शुरू में सुना, अभी हम फिर से एक बार सुनेंगे, लेकिन अलग तरीके से, क्योंकि हमने अभी अपने मन में बहुत सारे चेंज इस 1 घंटे में लाए हैं ना। और सुनते हुए आप यहाँ हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, जिनको आप नहीं जानते हो, उनके पास जाकर एक गुड विशेस उनको देकर आएंगे, ठीक है। पहले खुद को देंगे 1 मिनट के लिए, फिर अपने स्थान से उठकर जिनको जानते हैं उनको नहीं, जिनको नहीं जानते हैं, क्योंकि ये विश्व अपना ही है ना, तो उनको एक प्यारी एक स्माइल ही देकर आएँ, एक गुड विशेस देकर आएँ, जिसको कहते हैं सुख देना और सुख लेना। वो फीलिंग क्रिएट करेंगे। आपको देखना बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत सुंदर एक्टिविटी है। पहले खुद को देंगे और फिर जो यहाँ बैठे हैं उनके पास जाएंगे, ठीक है। चलिए गीत बजाएंगे। फर्स्ट आधा मिनट अपने आप को गुड विशेस देना, फिर आप स्टार्ट करना। गीत को सुनकर एंजॉय करिए, है ना। शांति में बैठने के लिए नहीं बजा रहे, खुशी का अनुभव करिए। बचपन कैसा था, खुशी वाला था ना, ऐसा फीलिंग करिए। सारी दुनिया में भर दिल है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में, सारी दुनिया में भर, मिलता चल तू सबसे। चलो अभी उठ जाओ, अपनी जगह से उठ जाओ, बढ़ता चल तू सब, जाइए, जिसको नहीं जानते उसके पास जाना है। लगा दे तू सबको आज हिम्मत के पल, दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर, दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर। एक के पास ही नहीं, आप 2-3 के पास भी जा सकते हैं। खुशी बांटिए, सबको खुशी बांटिए, मुस्कुराइए। टूटे हर दिल को तू जोड़ दे प्यार से, खुदा की झलक दिखा अपने किरदार से, बना दे हर दिल को तू एक खुशियों का घर, दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर, दिन है
सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। आ जाइए, अपने स्थान पे आ जाइए वापस। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, वो सुनकर आप जाइए। सभी के चेहरे पर प्यारी प्यारी मुस्कान है ना? जैसे बचपन में बच्चा कैसा होता है, सदा मुस्कुराता है, और कुछ भी होता रहे घर में, वो क्या करता है? अभी भी वो बच्चा हंस रहा था ना, हम मेडिटेशन कर रहे थे बहुत शांति में, वो अपने खुशी में है, अपनी मौज में है। तो ऐसे अपनी मौज को कायम रखना है, अपनी खुशी को हमें कायम रखना है। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है, 26, 27 और 28 खास बच्चों के लिए समर कैंप स्टार्ट होने जा रहा है, और उसके लिए स्पेशली दिल्ली से अदिति सिंगल जो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, साथ ही उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और बहुत सारे उनको अवार्ड्स मिले हैं, और बहुत अच्छी मेमोरी ट्रेनर है, और माइंड को कैसे, बच्चों को कैसे संभालना है, बच्चों का माइंड, और उनको कैसे शार्पन बनाना है, तो वो उनको बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं। बहुत उनको गूगल से भी सर्टिफाइड एजुकेटर का उनको अवार्ड मिला हुआ है। तो ख़ास वो बच्चों को कैंप कराने आ रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं। आपको मैसेज भी आया होगा कईयों को। अगर नहीं आया है तो आप जाते जाते नीचे रिसेप्शन में ज़रूर उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर जाएं और रजिस्टर्ड आज ही करें। जितना जल्दी करेंगे तो उसके रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं वो फिर रजिस्टर्ड मेंबर्स को खास दी जाएगी, तो वो आप ज़रूर करके जाएंगे। ठीक है? ओ थैंक यू। ओम शांति। Om Shanti. I think everybody is ready for Monday. You want Monday morning to come soon? And not only Monday, I think the entire week. So a big round of applause for Sister Sakshi. Personally, I just love the clarity, right? I mean, how do you do it step by step, and how is it required? So a very in-depth topic for sure. When it comes to thoughts, minds, of course it is in-depth, but how is she related to your real-time traffic, which you cannot avoid on a day-to-day basis, and then link it to your thoughts? I think a very, very clear approach. I hope everybody would have taken one or two takeaways to implement for yourself. Yeah. So thank you for your time as well. So before we close, I'll just have a couple of 2-3 announcements. So there are a couple of programs coming up at our premises at Shanti Sarovar for this month. So first one would be, like Sister said, the kids summer camp, which is coming up. Followed by that, on 25th of April, that is Saturday, we have an IT retreat. So some of you would be coming for the IT retreat regularly. So this is the April edition. And that would be hosted by Sister Aditi, who is taking even the kids carnival. And followed by that, that's a half-day program for the people who are new. It's a half-day program, 9:30 in the morning until 1 o'clock, followed by lunch. And it happens at the Inner Space premises, which is accessible even from your Infosys side of the gate of Shanti Sarovar, so the other side of the campus. So we would like to see you. The registrations are open for it. So to access that, if you have not got the email, please go and check out shantisarovar.org. In that, the homepage itself lists the events. You have the registration link over there. So please register, because registration is mandatory and free of charge. Next would be the last week, I think we've announced the Raj Yoga Shiva, which is happening at our headquarters, Mount Abu. That is in April 24th to 28th. So if you are interested for that, please reach out to Sister Komal, who's available at the reception at our building below, Gyan Yog Bhavan. So how do you plan your itinerary and all that? She'll help you with that. So that's a 3.5 days program, how you travel to Mount Abu, and then so that would be a group would be arranged for that, for the people who are ready to go, and then you can understand the basics of meditation, especially for the first time joiners. That's a program. And apart from that, the last one would be the next Sunday talk. The topic is AI intelligence versus soul wisdom.
a very in prime topic. So hope to see you next Sunday. And until then, thank you. Please take your prasad while you leave. So thank you. Have a nice evening and a great week ahead. Om Shanti.